Hello students, I welcome all of you to the YouTube channel of SRT. In today's lecture, I will be teaching you exercise number 2.1 of algebra from standard 9, that is real numbers ka chapter. Okay, before I go ahead, students please make a note that before this lecture, you have to go through the previous lecture where I have taught you all number theory, because that is the basics of this chapter. Only after that video you are supposed to see this particular video to understand things much more conceptually in a better way. Okay, before I go ahead, a reminder, do subscribe to the channel and hit the bell icon to get all the latest updates, and do write your views in the comment box regarding the lecture. You are also free to share the video with those students who are not a part of SRT so that everyone can benefit from it. Chalo, now let's start with your first exercise. Come on. Okay, practice set 2.1, question number 1. See what the question says. Classify the decimal form of the given rational numbers into terminating and non-terminating recurring type. पहले क्वेश्चन का मतलब समझो. उन्होंने क्या बोला है? क्लासिफाई द डेसिमल फॉर्म ऑफ द गिवन रैशनल नंबर. मतलब जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर है. वो रैशनल नंबर्स when we get it in the decimal form, तो उसका आंसर will be terminating decimal or it will be non-terminating recurring. That is what we have to find out. Here मैंने previous lecture में आप लोगों को बताया था, when we talk about decimal numbers, there are three types of numbers. टर्मिनेटिंग नंबर होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर होता है, एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है. लेकिन वो तीनों में से दे आर टॉकिंग ओनली अबाउट टू थिंग्स, दैट इज टर्मिनेटिंग नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. इमीडिएटली क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए, अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आया तो क्या, इधर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्यों नहीं दिया है? देयर इज अ रीजन फॉर इट. व्हाट इज द रीजन? ऑल द नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, एंड मैंने आपको सिखाया है दैट व्हेन वी टॉक अबाउट रैशनल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग तो आने ही नहीं वाला है, बिकॉज ओनली टर्मिनेटिंग नंबर or non-terminating recurring numbers are rational numbers. So when we convert this in decimal form, non-terminating non-recurring is not going to come into picture. Is that clear? Because these are rational numbers. Okay, now first number 13/5. अभी ये 13/5 दिया हुआ है, इसका decimal form terminating रहने वाला है कि recurring रहने वाला है? That is what we are supposed to find out. एकदम सिंपल है. आप लोग क्या करोगे, इसको decimal form में लेके आओ. So 13/5 बचपन से सीखा है डिवाइड कैसे करने का है. ओके, सो 35 you will say 5, sorry, you will say 5 2s are 10. I will write 10 over here. 3 is the remainder. There is no digit to be taken down. You will put a decimal point and you will put a 0 over here. 5 6 are 30, minus 30, remainder is 0. Therefore 5/13 का answer is what? 2.6. and 2.6 is what type of number? You will say it is a terminating number because your division ends, quotient, your digit ends at 6, number ends at 6 over here, so it is a terminating number. तो first का आंसर क्या हो गया? The decimal form of the given rational number is of terminating type. Okay, let's go to the next one, that is 2/11. तो आप लोग क्या करोगे, ये जो 2/11 दिया हुआ है इसको डिवाइड करोगे. Okay, numerator you will write over here, this is your divisor. 2 नहीं जाता है, you will put a 0, minus 0, 2. You will put a decimal, इधर 0 आ जाएगा. 1s are 11, remainder is 9. Because you have put a decimal, you can add up to 1 0. तो इधर लिखोगे 0, 90 है, तो you will take 11 8s are 88, remainder 2. Okay, again you will put a 0, 1s are 11, 9, 0, अभी 90 है तो वापस 8s are 88 होगा. एंड कैन आई से मेरे पास रिमाइंडर 0 नहीं आया है, सो द प्रोसेस इज गोइंग टू कंटिन्यू. सो मेरा 2/11 का आंसर क्या आ गया? 0.1818 डॉट डॉट डॉट. इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, बट do you see the same digits repeating? So it is a non-terminating recurring number. So on dividing, you come to know that the answer is 0.18181818. So the second number is of non-terminating recurring type. Okay, अभी ये पूरे प्रोसेस में मैंने क्या किया मालूम है? जो भी नंबर्स दिया हुआ था उसको मैंने एक्चुअली डिवाइड किया, एंड आई फाउंड आउट द कोशेंट, एंड देन आई क्लासिफाइड इनटू आइदर टर्मिनेटिंग और रिकरिंग टाइप.
ओके आप लोगों को ये सम ये मेथड से नहीं करना है. Remember this. You are not supposed to do this sum by this method. अगर ये मेथड से करोगे, even if your answer is correct, you will get 0 marks. This is a lengthier process. There is a shortcut to it. इधर मैंने क्या किया मालूम है? मैंने एक्चुअली फाइंड आउट किया कि मेरा डेसिमल फॉर्म क्या है. क्वेश्चन में ये तो पूछा ही नहीं है कि उसका डेसिमल फॉर्म क्या है. क्वेश्चन में क्या पूछा है कि डेसिमल फॉर्म कौन से टाइप का है. मेरे को 2.6 मेरे नंबर से मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को खाली ये फाइंड आउट करने का है कि वो टर्मिनेटिंग है कि रिकरिंग है. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके तो इसका शॉर्टकट क्या है देखो. अगर मेरे को खाली क्लासिफाई करने का है ना, सो टू क्लासिफाई द मेथड इज दैट जो भी मेरा फ्रैक्शनल फॉर्म में नंबर है ना, उसका खाली डिनोमिनेटर पकड़ने का एंड डिनोमिनेटर का फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर्स. अगर मेरा प्राइम फैक्टर 2 या 5 को छोड़ के कौन सा भी दूसरा नंबर रहेगा, देन द नंबर इज रिकरिंग. एंड अगर मेरा प्राइम फैक्टर डिनोमिनेटर का खाली 2 या 5 में से ही रहेगा, देन द नंबर विल बी अ टर्मिनेटिंग नंबर. दिस इज अ शॉर्टकट. विदाउट फाइंडिंग द आंसर, डेसिमल फॉर्म में क्या है, यू कैन फाइंड आउट द कैटेगरी ऑफ आंसर एंड दैट इज द मेथड यू आर सपोज्ड टू डू ओवर हियर. तो ये सम सॉल्व कैसे करने का है देखो. द गिवन नंबर इज 13/5. मैंने क्या बोला, मेरे को इसका डेसिमल फॉर्म क्या है एग्जैक्ट आंसर से मतलब नहीं है. आई जस्ट वांट टू क्लासिफाई. सो द मेथड सेज pick up the denominator. My denominator is what? 5. So I'll write its denominator is 5. अभी ये 5 का find out the prime factors. अभी there are two words that I'm talking about. One is prime, second is factor. Okay? Prime number क्या होता है सबको मालूम है. A number which goes in itself and one का table is called as a prime number. For example, 5. 5 कौन से टेबल में जाता है, खाली 1 और 5 में जाता है. सो इट इज अ प्राइम नंबर. इफ आई टॉक अबाउट अ नंबर 6 गोज इन 1 का टेबल, 2 का टेबल, 3 का टेबल, 6 का टेबल. तो 1 और 6 को छोड़ के 2 और 3 के टेबल में भी 6 आता है. सो 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर. ओके तो प्राइम नंबर क्या होता है समझा. फैक्टर एंड डिवाइजर का मतलब सेम होता है. मतलब कौन से नंबर के टेबल में जाता है वो नंबर इज कॉल्ड एज अ फैक्टर. एग्जांपल 6 goes in which table? 1 का टेबल, 2 का टेबल, 3 का टेबल, 6 का टेबल. So these are factors of 6. समझा? ओके फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, अपने को क्या सिलेक्ट करने का है कि फैक्टर शुड बी अ प्राइम नंबर. ओके अभी when I talk about my denominator over here 5 का फैक्टर्स कौन है. 5 का फैक्टर इज ओनली 1 and 5. 1 and 5 में से प्राइम नंबर कौन है 5. 1 is neither prime nor composite. So I say its prime factor is, I will write the answer as 5. और मैंने क्या बोला था, मेरा प्राइम फैक्टर में अगर 2 और 5 इसको छोड़ के अगर कुछ और रहेगा तो इट विल बी रिकरिंग. इधर मेरा प्राइम फैक्टर खाली 5 है. Therefore the decimal form of the given number is of terminating type. अगर आप ये मेथड देखोगे ओके मेरे को ये नहीं मालूम कि 13/5 का एग्जैक्ट आंसर क्या है, लेकिन मैंने क्लासिफाई कर दिया जो भी आंसर रहेगा इट विल बी टर्मिनेटिंग एंड दिस इज द प्रूफ ऑफ इट. ये मैंने जब भी डिवाइड करके फाइंड आउट किया मेरा आंसर 2.6 था विच इज अ टर्मिनेटिंग नंबर. समझा? तो दिस इज द शॉर्टकट, दिस इज द लेंथियर प्रोसेस. डू नॉट डू दिस मेथड अगर खाली क्लासिफाई करने बोला है. ओके नेक्स्ट नंबर 2/11. गिवन नंबर इज 2/11. ये सब स्टेटमेंट्स लिखना कंपलसरी है. डिनोमिनेटर क्या है 11. इट्स प्राइम फैक्टर इज 11. 11 का फैक्टर्स कौन है 1 और 11. उसमें से 11 इज द प्राइम नंबर. सिंस द प्राइम फैक्टर इज अदर देन 2 और 5, मेरा फैक्टर में अगर 2 या 5 को छोड़ के कुछ भी और रहेगा, द डेसिमल फॉर्म ऑफ द गिवन नंबर इज ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप. ओके और जब भी मैंने डिवाइड करके फाइंड आउट किया था वही आंसर आया था. इट वाज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप. समझा? सो व्हाट इज द रूल. इफ डिनोमिनेटर को पकड़ने का, डिनोमिनेटर का फैक्टर्स लेके आओ प्राइम फैक्टर्स. इफ द प्राइम फैक्टर इज एनीथिंग एक्सेप्ट 2 और 5 इट विल बी रिकरिंग एंड इफ इट इज ओनली 2 और 5 देन इट विल बी टर्मिनेटिंग. Is that clear? Let's go to the next question.
Question number 3. Number is 29 upon 16. Now the given number you have to write it is 29 upon 16. मैंने क्या बोला? Pick up the denominator. Denominator is 16. Now you need to get the prime factors. अभी देखो, ये जो 16 है ना, कौन से टेबल में जाता है? 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा, देन डायरेक्टली 8 के टेबल में आएगा. नंबर का हाफ होता है ना, उसके बाद डायरेक्टली टेक द नंबर. 8 के आगे कौन से भी टेबल में नहीं जाएगा, डायरेक्टली टेक 16. दिस इज ट्रू फॉर एनी नंबर. नंबर के हाफ तक सोचिएगा. ओके, ठीक है. अभी इसमें से विच आर द प्राइम नंबर्स? द ओनली प्राइम नंबर इज 2. So you will say its prime factor is 2. Suppose अगर ये प्रोसेस डिफिकल्ट लगता है, there is another way to find the prime factors, which is actually easy. ऐसा कर सकते हैं. ये भी आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में किया हुआ है. 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा. So which is the only prime factor? Only prime factor is 2. ऐसे किया तो भी चलेगा. The decimal form of the given number. अभी देखो, प्राइम फैक्टर 2 है, 2 या 5 को छोड़ के और कुछ भी नहीं है. So the decimal form will be of terminating type. Is that clear? Okay. Next क्या है? 17 upon 125. Pick up the denominator 125. Its only prime factor is 5. अगर आपको फाइंड करने का है, आप लोग ऐसा कर सकते हो. 125 2 के टेबल में नहीं जाएगा, 3 के टेबल में नहीं जाएगा. कैसे समझेगा? 3 का टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है? Add the digits. 5 plus 2 7, 7 and 1 8. If the addition, जो भी आंसर आता है, if that goes in 3 का टेबल, entire number will go in 3 का टेबल. इधर नहीं जाता है, so 2 नहीं 3 नहीं, 4 को तो चेक भी नहीं करने का क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं है. Take 5. 5 के टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है? लास्ट डिजिट शुड बी 5 और 0. लास्ट डिजिट 5 है, 5 के टेबल में जाएगा. 5 25 से आएगा, 5 5 से आएगा, 5 1 से आएगा. So which is the only prime factor? 5. Since the prime factor is only 2 or 5, 2 और 5 को छोड़ के और कुछ भी नहीं है, the decimal form of the given number is of terminating type. ये है ना शॉर्टकट. एक्चुअली डिवाइड करने का जरूरत ही नहीं है, खाली डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर देख के क्लासिफाई कर सकते हो कि वो टर्मिनेटिंग होगा कि रिकरिंग होगा. ओके, नेक्स्ट नंबर इज 11 upon 6. पिक अप द डिनोमिनेटर. व्हाट इज माय डिनोमिनेटर? 6. नाउ टेक द प्राइम फैक्टर. 6 का इफ आई वांट द प्राइम फैक्टर टू 3 सा 3 1 सा, सो कैन आई से द प्राइम इट्स प्राइम फैक्टर्स आर 2 and 3. ओके, अभी ये स्टेटमेंट के पहले और एक स्टेटमेंट आएगा. क्या आएगा? मेरा प्राइम फैक्टर 2 या 5 को छोड़ के कुछ दूसरा नंबर प्रेजेंट है. कौन सा नंबर प्रेजेंट है? 3. सो आई विल से सिंस द प्राइम फैक्टर इज अदर देन 2 और 5, therefore the decimal form of the given number is of non-terminating recurring. समझा? ओके, मतलब इधर 2 है लेकिन 2 के साथ में ये 3 है. 3 के वजह से it becomes non-terminating recurring type. Is that clear? This completes your question number 1. Now let's go to question number 2. Question says write the following rational numbers in decimal form. अभी दोनों क्वेश्चन के बीच में डिफरेंस समझो. पहले भी क्वेश्चन नंबर 1 में भी रैशनल नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में दिया था, 2 में भी फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है. 1 में क्या पूछा था? क्लासिफाई द फॉलोइंग इन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग टाइप. ओके, कि वो टर्मिनेटिंग है कि रिकरिंग है. इधर क्या बोला है? राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म. मतलब ये नंबर्स को मेरे को डेसिमल फॉर्म में लिखने का है, खाली कैटेगरी जरूरी नहीं है, उसका आंसर क्या है ये फाइंड करने का है. एंड फॉर दैट इट इज नेसेसरी टू परफॉर्म द एक्चुअल डिवीजन एंड फाइंड आउट द आंसर इन डेसिमल फॉर्म. सिंपल है. 127 upon 200. अभी इसको डेसिमल फॉर्म में देखो, एक्चुअली डिवाइड करेंगे. 127 न्यूमरेटर विल ऑलवेज कम इनसाइड, डिनोमिनेटर से डिवाइड करने का, डिनोमिनेटर बाहर आएगा. अभी 127 इज लेस देन 200, तो ऑब्वियसली इधर 0 आएगा. 0 127 पुट अ डेसिमल, यू कैन ऐड अप टू 1 0. अभी 1270 है. ओके, नाउ 200 into 6 करोगे तो 1200 मिलेगा. ओके, रिमाइंडर विल बी 70.
because you have put a decimal you can add up to 1 zero. Now 200 है, इधर 700 चाहिए, you will say 3s are 600, remainder will be 100, you can add up to 1 zero. 5s are will give you 1000. So remainder 0 आ गया, जब ये remainder 0 आ गया your division ends, your answer will be 127 upon 200 which will be 0.635 and you box it up. Okay, तो ये जो 0.635 है, this is the decimal form of this particular number. Okay, now let's go to the next one. Second answer. Okay, question is 25 upon 99. Okay, so first you have to write the number that is given, then you will perform the division. Numerator will always come inside, denominator you will write it over here. 25 again less than 99, so you will write zeros are 25, decimal you can add up to 1 zero. आपके convenience के लिए मैंने इधर 99 का टेबल लिख लिया है. 250 मेरे को चाहिए, तो 250 2s are 198, 3s are 297. You cannot take a number which is more than 250. So obviously you will take 2s are 198. And जब भी subtract करोगे, remainder will be 52. As I told you, decimal है, you can add up to 1 zero. 520 less than 520, 495 है, तो 5s I will write 495. Remainder क्या आया? 25. समझ में आ रहा है? Okay, you can add up to 1 zero. 250. अभी 250 है तो how many are? Again 2s are 198. Remainder 52. अभी मैं एक ट्रिक आपको बताता हूँ. क्या करने का, सुनो मेरी बात. ओके, अभी 127 अपॉन 200 यू नो हाउ टू क्लासिफाई कि वो टर्मिनेटिंग रहेगा कि रिकरिंग होगा. पिक अप द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर 200 है. द प्राइम फैक्टर ऑफ 200 विल बी 2 and 5. 2 या 5 को छोड़ के कुछ भी नहीं है, तो नंबर हैज टू बी टर्मिनेटिंग. अगर टर्मिनेटिंग है, रिमाइंडर 0 आना ही है. अभी सेकंड नंबर 99 है. 99 का वन ऑफ द प्राइम फैक्टर इज 3. इट इज अ नंबर अदर देन 2 और 5, तो उसका जो डेसिमल फॉर्म है वो रिकरिंग ही आएगा. डिनोमिनेटर 0 सॉरी रिमाइंडर 0 आ ही नहीं सकता है, बिकॉज डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर इज 3 विच इज अदर देन 2 और 5. तो रिकरिंग है, ये दिमाग में पहले डाल दो. ओके, रिकरिंग है. अभी देखो, रिकरिंग जब भी रहता है ना, यू हैव टू जस्ट वेट फॉर एटलीस्ट 1 डिजिट टू बी रिपीटेड. ये 2 सेम डिजिट इधर रिपीट हो गया, तो आगे सेम पैटर्न रिपीट होगा. 25 25 25. जैसे ही एक डिजिट रिपीट हो गया, स्टॉप योर डिविजन प्रोसेस. ओके, माय आंसर विल बी 25 upon 99 is equal to 0.25 and 25 लिखने का जरूरत नहीं है. ऊपर पुट अ बार साइन. ये बार साइन का मतलब इट विल बी अ रिकरिंग नंबर. समझा? क्लियर विद इट? ओके, तो दिस आई कैन हाईलाइट. ओके, सो नंबर देख के पहले डिसाइड करो टर्मिनेटिंग रहेगा कि रिकरिंग रहेगा. अकॉर्डिंगली यू कैन कंटिन्यू. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन. ये देखो, थर्ड वन. अभी ये जो प्रोसेस मैंने बोला है, इसमें बहुत काम का है. ओके, लुक हियर. थर्ड वन, 23 upon 7. 23 upon 7 डिवाइड करो. पहले से सोच के रखेंगे आंसर का कैटेगरी क्या रहेगा. माय डिनोमिनेटर इज व्हाट? डिनोमिनेटर इज 7. इट्स प्राइम फैक्टर इज 7. नंबर इज अदर देन 2 और 5, तो आंसर हैज टू बी अ रिकरिंग नंबर. आप लोग शायद ये तो नहीं सोच रहे हो ना कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्यों नहीं है. अरे वेरी ऑब्वियस, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली रैशनल नंबर्स, एंड रैशनल नंबर्स कभी भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नहीं आएगा. तो डेसिमल फॉर्म या तो टर्मिनेटिंग रहने वाला है या रिकरिंग रहने वाला है. तो ओवर हियर डिनोमिनेटर इज 7, प्राइम फैक्टर इज 7, अदर देन 2 और 5, नंबर विल बी अ रिकरिंग नंबर. ठीक है, मतलब रिमाइंडर 0 आने ही नहीं वाला है. ओके, नाउ 7 3s are 21, subtract 2, put a decimal, I'll put a 0. 2s are 14, remainder 6, I can add up to 1 0. 8s are 56, 4. आपको वेट किसका करने का है? कौन सा भी एक सेम डिजिट रिपीट होगा, मेरा काम हो जाएगा. ओके, put a 0. 5s are 35, remainder 5, 0. 7s are 49,
रिमाइंडर 1 इतना होता है ना, स्टूडेंट्स लूज होप कि रिकरिंग नहीं आएगा एंड वो छोड़ देते हैं एंड फाइनल आंसर ऐसा लिखेंगे 3.2857 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब क्या हुआ मालूम है? दैट इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। एंड आप लोग को मालूम है रैशनल नंबर कभी भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नहीं होगा, तो हैव पेशेंस, आंसर रिकरिंग में आएगा ही, भले वो लंबा जाने दो, बट अ डिजिट इज श्योरली गोइंग टू रिपीट। ओके, आगे में 0 डालेगा, 1 जा 7, 3 पुट अ 0, 4 जा 28, अभी भी सेम डिजिट नहीं आया है, 2 0, 2 जा 14। नाउ यू शुड बी हैप्पी। सर इधर रिमाइंडर 6 आएगा, हैप्पी क्यों मालूम है? ये देखो ये 2 सेम डिजिट रिपीट हुआ, मतलब इसके बाद का पैटर्न सेम रहने वाला है। योर डिवीजन प्रोसेस इधर खत्म कर दो। आंसर कैसे लिखोगे? देखो 23/7 is 3.28, 5714 वापिस 2 मत लिखना। ओके, ये पूरे को बार दिस एंटायर सेम थिंग विल बी रिपीटेड। इसके आगे 2857, इसके आगे 85714 वापस रिपीट होगा। ओके, तो ये जो लास्ट सेम डिजिट होता है ना, उसको आंसर में इधर वापस नहीं लिखने का। क्लियर? किधर तक डिवीजन करने का ये समझ में आ गया आप लोगों को? जब तक रिकरिंग अगर आंसर रहता है, सेम डिजिट रिपीट नहीं होता है तब तक। इधर भी अगर आप देखोगे 0.252 ऐसा मत लिखना, ये जो डिजिट रिपीट होता है वो आंसर में नहीं आएगा, खाली इतना आएगा। इज दैट क्लियर? ओके, चल गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ओके, अभी आई विल डायरेक्टली टेक द फिफ्थ वन। सारे सम सॉल्व करके मतलब नहीं है, फिफ्थ वन देखो 17/8। एकदम सिंपल है। पहले मैं डिसाइड करता हूं कि रिकरिंग होने वाला है कि टर्मिनेटिंग होने वाला है। माय डिनोमिनेटर इज व्हाट? 8। प्राइम फैक्टर क्या है इसका? 2 या 5 को छोड़ के और कुछ भी नहीं है, मतलब टर्मिनेटिंग होगा। मेरा रिमाइंडर 0 कंपलसरी आने वाला है। ओके, सो ओवर हियर 8 2 जा 16, 1 पुट अ डेसिमल, 0 1 जा 8, रिमाइंडर 2 पुट अ 0, 2 जा 16, रिमाइंडर 4 पुट अ 0, 5 जा 40, रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0, डिवीजन एंड्स। 17/8 is 2.125 and this will be in a box. Is that clear? So this is how you get a rational number in its decimal form. Decimal form अगर पूछा रहेगा पूरा वर्किंग करने का, अगर खाली क्लासिफाई करने बोला रहेगा, you just pick up the denominator, looking at its prime factors you need to classify, no need to perform the division. Okay, let's go to question number 3 now. Question number 3 exactly reverse of what we have done in question number 2. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था मालूम है? रैशनल नंबर्स जो थे ना वो फ्रैक्शन में दिया था, वी हैड टू राइट इट्स डेसिमल फॉर्म। अभी इधर क्या दिया है देखो, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन P/Q फॉर्म। ये P/Q का मतलब मैंने मेरे प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया है। P/Q फॉर्म का मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखने का है। नंबर्स डेसिमल में दिए हुए हैं, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का है। अभी सुनो, जब भी क्वेश्चन नंबर 2 में फ्रैक्शन में दिया हुआ था रैशनल नंबर, एंड व्हेन वी कन्वर्ट इनटू डेसिमल, आइदर वी गॉट अ टर्मिनेटिंग नंबर और वी गॉट अ रिकरिंग नंबर। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, रिवर्स प्रोसेस करने का है। डेसिमल फॉर्म में दिया रहेगा, वी हैव टू गेट इट इन फ्रैक्शनल फॉर्म। लेकिन अगर आप लोग सारे क्वेश्चंस देखोगे ना, यू विल रियलाइज ऑल द नंबर्स आर विद अ बार साइन। बार साइन का मतलब क्या? दे आर रिकरिंग नंबर्स। तो रिकरिंग नंबर को फ्रैक्शन में लेकर आने का है। एक क्वेश्चन दिमाग में इमीडिएटली आना चाहिए कि सर उन्होंने टर्मिनेटिंग नंबर फ्रैक्शन में लाने क्यों नहीं बोला है? एक्चुअली टर्मिनेटिंग नंबर को फ्रैक्शन में लाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यू हैव डन दैट इन लोअर स्टैंडर्ड। याद दिलाता हूं, 3.17 याद है। अगर इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना रहता तो आप लोग ऐसे लिखोगे 317/100। डेसिमल के बाद में देयर आर 2 डिजिट्स, तो टू रिमूव द डेसिमल अब मैंने डिनोमिनेटर में 100 डाला। अगर 0.5 को मेरे को फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखने का है, आई विल राइट इट एज 5/10 एंड इन द रिड्यूस्ड फॉर्म माय आंसर विल बी 1/2। 1.234 को अगर मेरे को फ्रैक्शनल फॉर्म में लेकर जाने का है, 1234/1000।
इज दैट क्लियर? ये नंबर को रिड्यूस्ड फॉर्म में लेके आओ, दैट विल बी योर फाइनल आंसर. इज दैट क्लियर? सो अगर एग्जाम में ऐसा कुछ नंबर आया एंड फ्रैक्शनल फॉर्म में करने बोला, प्लीज डू नॉट फॉलो द मेथड दैट वी विल बी डूइंग इट ओवर हियर. ओके, टर्मिनेटिंग नंबर अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में लेकर जाने का है, डायरेक्टली यू हैव टू ऐड जीरोस इन द डिनोमिनेटर. अगर मेरे 2 डिजिट है, 2 जीरो, 1 डिजिट है आफ्टर डेसिमल 1 जीरो, 3 डिजिट आफ्टर डेसिमल 3 zeros. Understood? Because the process is very easy and covered in lower standards. उसके लिए टर्मिनेटिंग को फ्रैक्शनल फॉर्म में लेकर जाने को 9th स्टैंडर्ड में नहीं है. रिकरिंग को कैसा फ्रैक्शन में लेके जाने का है, दैट इज अ न्यू थिंग दैट यू आर सपोज टू स्टडी. समझा? ओके, एक्सरसाइज कैसे फॉर्मुलेट किया है समझ में आ गया. क्वेश्चन नंबर 2 में फ्रैक्शन से डेसिमल था, अभी डेसिमल से फ्रैक्शन में है. ओके, लेट्स सी द मेथड फॉर रिकरिंग नंबर्स टू कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन. फर्स्ट नंबर दिया है 0.6 डॉट. We use it for a single digit if it is repeated. एक डिजिट से ज्यादा रिपीट होता है तो बार साइन भी हो. ओके, मतलब सेम है दोनों का. मेथड देखो, जो भी नंबर दिया हुआ है ना, टेक इट x is that 0.6 डॉट. इसका मतलब क्या हो जाएगा? 0.666 डॉट डॉट डॉट. इसको लिखो इक्वेशन 1. मतलब इट इज 0.6 is recurring. ओके, now multiply both sides by, अभी कितने डिजिट रिपीट हो रहा है? रिकरिंग में देयर इज 1 डिजिट, क्योंकि रिकरिंग में देयर इज 1 डिजिट यू विल मल्टीप्लाई बाय 10. रिकरिंग में 2 डिजिट होगा यू विल मल्टीप्लाई बाय 100. 3 डिजिट रहेगा यू विल मल्टीप्लाई बाय 1000. जितने डिजिट रिपीट होते हैं उतने जीरोस आएंगे. इफ आई मल्टीप्लाई बाय 10 तो ये नंबर क्या हो जाएगा? 10x हो जाएगा. विल बी, एंड अगर मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, एक डेसिमल आगे शिफ्ट होगा, तो माय नंबर विल बी व्हाट? 6.66. आगे का तो नंबर एज इट इज रिपीट हो रहा है, ये 666 रिकरिंग है. सो दिस इज नथिंग बट 6.6. रिकरिंग को मैं ऐसे लिख सकता हूँ. समझा? 6 इज गेटिंग रिपीटेड. इसको मैंने लिखा इक्वेशन 2. देन यू विल से इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1. मेरा इक्वेशन 2 ये वाला है, इक्वेशन 1 ये वाला है. सो लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट होगा. आई विल गेट 10x माइनस x इज इक्वल टू, अभी राइट हैंड साइड जब भी आप लेते हो ना, इसको लेने का कि इसको लेने का, इसको लेने का कि इसको लेने का, टेक द नंबर विद द बार साइन. अगेन आई रिपीट, टेक द नंबर विद द बार साइन. इधर बार साइन के बदले डॉट है, तो इक्वेशन 2 में इट इज 6.6 डॉट माइनस, ये दोनों में से कौन सा लेगा? ये वाला लेगा. टेक इट विद द बार नोटेशन, 0.6 डॉट. ओके, 10x माइनस x 9x, 6.6 डॉट माइनस 0.6 डॉट. अगर मैं ये सब्ट्रैक्ट करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? देखो ये सेम है, 0 हो जाएगा. 6 माइनस 0 6. अंडरस्टूड? ओके, तो मेरा 6.0 विच इज नथिंग बट 6. x will be 6 upon 9. Always write the answer in reduced form. 3 के टेबल से reduce हो जाएगा, तो x will be 2 upon 3. लेकिन मेरा ओरिजिनली x क्या था? Let x is equal to 0.6 dot. तो 0.6 dot in the recurring form is 2 upon 3. Is that clear? अगर आपको चाहिए तो क्रॉस चेक कर सकते हो. ये देखो 2 3 एक्चुअली डिवाइड करके बताता. 20 put a decimal, 6 are 18, remainder 2, put a 0, 6 are 18, remainder again 2, put a 0, 6 are 18. Do you see the same process is repeated? So मेरा आंसर क्या आ रहा है? 0.66666, which is nothing but 0.6 dot. Understood? Okay, so this is the method to convert a recurring number in a fractional form. क्लियर? मैं और एक सम सिखाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्ट मेथड. ओके, अभी नेक्स्ट सम क्या है? 0.37 बार. इंस्टेड ऑफ दैट लेट्स टेक दिस वन, थर्ड वन क्या? अच्छा ठीक है, सेकंड वन ले लो. 0.37 बार. योर फर्स्ट स्टेप, जो भी नंबर दिया रहता है अज्यूम इट एज x. सो लेट x इज इक्वल टू 0.37 बार. राइट इट इन अ रिकरिंग फॉर्म. 37 3 बार रिपीट करो, 3 टाइम्स, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट. इक्वेशन 1. नाउ
I will multiply both sides by, abhi how many digits are repeating? 2 digits are repeating, so you will multiply by 100. इसको अगर मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100x is equal to, take the decimal 2 places ahead, so it will be 037 is nothing but 37.37 dot dot dot, which can be written as 37.37 bar. ये हो गया मेरा इक्वेशन 2. ओके, अभी दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करने का. यू विल से इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1. इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड 100x, 1 का लेफ्ट हैंड साइड x, राइट हैंड साइड ये लेने का कि ये टेक द नंबर विद द बार, सो 37.37 बार माइनस इधर विद द बार कौन है, ये वाला 0.37 बार. ओके, 100 minus x will give you 99x is equal to 37.37 बार minus 0.37 बार. 37 बार तो सबट्रैक्ट होके डेसिमल के बाद तो 0 हो जाएगा. बचा क्या, 37 minus 0 before the decimal which is 37. x will be 37 upon 99. चेक करने का रिड्यूस होता है कि नहीं, कैसे चेक करोगे, ये 3 के टेबल में जाता है. 37 3 के टेबल में जाता है क्या, चेक करो, ऐड द डिजिट. 3 plus 7 10 does not come in 3 का टेबल, so 37 will not come in 3 का टेबल. रिड्यूस नहीं हो सकता है. दिस इज योर फाइनल आंसर. अभी x को रिप्लेस कर दो विद द क्वेश्चन. 0.37 बार was x which is 37 upon 99. अगर मैं ये डिवाइड करेगा आंसर ये आना ही चाहिए. अंडरस्टूड, क्लियर, सिंपल प्रोसेस है. नाउ वी विल टेक अ सम where there are okay, we'll take the fourth one now. Come, third one, 3.17 bar. I will say let x is equal to 3.17 bar. उसको रिकरिंग फॉर्म में लिखो, 3 बार रिपीट करने का. हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स. डॉट डॉट डॉट. दिस इज योर इक्वेशन 1. ओके, नाउ यू विल मल्टीप्लाई बाय हाउ मेनी टाइम्स, कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं इधर, 2 डिजिट, सो यू विल मल्टीप्लाई बाय 100. आई विल से मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100. तो अभी जब भी 100 से मल्टीप्लाई करेगा, लेफ्ट हैंड साइड 100x, राइट हैंड साइड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो आई विल गेट 317.1717 आगे डॉट 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 है, उसको मैं लिखेगा 317 bar equation 2. Now you need to subtract the two equation. So I will say equation 2 minus equation 1. Left hand side of equation 2 100x minus x is equal to, take the number with the bar. So 317.17 bar minus 3.17 bar. Clear? अभी ये हो जाएगा 99x is equal to, now 317.17 bar minus 3.17 bar. The bar part is always going to get cancelled. बचा क्या, 317 minus 3 which will be 314. X will be 314 upon 99. Now this goes in 3 का टेबल, इधर ऐड करो. 3 plus 1 4, 4 plus 4 8. 8 does not go in 3 का टेबल, entire number will not go. So reduced form is not possible. This is your final answer. Therefore, replace your x by what you have taken, that is 3.17 bar. So 3.17 bar is 314 upon 99. Clear? अभी ये जो fourth question है ना, it is exactly similar to the third one. That is why I am not doing it. I directly go for the fifth one. Fifth क्या है? 2.514 bar. I will say let x is equal to 2.514 बार. राइट इट इन रिकरिंग फॉर्म, 3 बार रिपीट करने का. 514 514 514, देन यू पुट डॉट 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 इक्वेशन 1. ओके, क्लियर? डॉट 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 इज कंपल्सरी, या अदरवाइज इट विल लुक लाइक अ टर्मिनेटिंग नंबर. ओके, नाउ यू विल मल्टीप्लाई बाय व्हाट, हाउ मेनी डिजिट्स आर रिपीटेड, आई विल से मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय योर repetition में कितने डिजिट है, 3 डिजिट्स आते हैं, so you will multiply by 1000.
So I'll say 1000x is equal to, take the decimal 3 places ahead. So 2514, आगे 514 514. So 0.514 514 repeated, उसको बार फॉर्म में लिखेंगे 2514.514 बार. This becomes your equation 2. Now you will say equation 2 minus equation 1. So 1000x minus x is equal to, in my second equation the number with the bar is 2514.514 bar minus, in the first equation the number with the bar is this. As I told you, the bar part is always going to get cancelled. So bar part cancel हो गया, बचा क्या 2514 minus 2, which will be 2512. Therefore x will be 2512 upon 999. चेक करो रिड्यूस होगा कि नहीं होगा. इधर ये 3 के टेबल में जाएगा. 2 plus 5 7, 7 plus 1 8, 8 plus 2 10. 10 does not come in 3 का table, so number cannot be reduced. Therefore 2.514 bar is equal to 2512 upon 999 and you will box it up. खाली एक चीज याद रखने का है, लास्ट नंबर को चेक करने का whether it is possible to reduce or not. Okay, so this is how you convert your recurring number in a fractional form. If the teacher wants to confuse you, teacher will give you the same heading, write the following numbers in P upon Q form. Teacher might give you a number 0.555. इसको fractional form में लिख के बता. Okay, in this case few students बोलेंगे 555 repeat हो रहा है and they will assume it to be 0.5 recurring, which is wrong. आगे डॉट 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 नहीं है. अगर आगे डॉट 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 या फिर बार साइन नहीं है, you cannot take it as a recurring number. This is a terminating number. And अगर terminating है, ये प्रोसेस नहीं करना है. Directly you will write this as 555 upon 1000. Okay, directly 3 डेसिमल आगे शिफ्ट करोगे. रिड्यूस फॉर्म में 5 के टेबल से रिड्यूस करो, 5111 200 खत्म. This in fractional form is this. Understood? So to convert a terminating number into fractional form, it is very simple. ये पूरा प्रोसेस कभी यूज करने का, only when the number is there in the recurring form. Clear? This completes your exercise number 2.1. So students, I hope you understood everything that was taught in the first exercise of real numbers. Do write your views in the comment box over there. A quick reminder, if you're here for the first time, do subscribe to the channel and hit the bell icon to get all the latest updates. Also, you guys are free to share the video with those students who are not a part of SRT so that everyone can benefit from it. I promise to come back over here very soon with much more content only for you. Till then, tata bye bye.